Hello friends, in this part 2 we are discussing about Taylor Scientific Management. My dear student, if you are not see part 1, so first of all see part 1, otherwise you are not understand this part 2. So let's start Taylor Scientific Management. My dear student, who is Taylor? Their full name is Frederick Winslow Taylor. He was born in March 20, 1856. Their profession, American mechanical engineer. He completed his study in mechanical engineering in 1883. He is also known as the father of scientific management. You know very well what is general management. What is general management? We are already learned in part 1. In this part 2, we are discussing about what is scientific management and their elements, their characteristics, difference between Fayol and Taylor study. These topics we are discussing in this part 2. So let's start. First of all, what is scientific management? Scientific management is the art of knowing exactly what you want to do and then seeing that they do in a best way in a cheapest price. That is called scientific management. What is the scientific management elements? Scientific analysis. Scientific management is totally based on scientific analysis. It tries to follow the unity, effectiveness and suitability of plan before it put it in use. Second, set of rules. Scientific management is totally set of rule. In this management, in order to implement the plan, and set of rules are made and put in a use. Always do surveys and research. It gives a pride to place to survey and researches. They are necessary to have an effective control. You have knowledge of new techniques. Survey and research lead to knowledge and use to new techniques in the field of management. Proper training. For adoption new technology, जब आप नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, मैनेजमेंट एम्स एट ट्रेनिंग वर्कर प्रॉपरली. तो मैनेजमेंट कहता है कि वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग देना ज़रूरी है. कंप्लीट हार्मोनी. अटेम्प्ट टू मेड हार्मोनी मीन्स बिटवीन बैलेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर. दैट इज द मीन कंप्लीट हार्मोनी. फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. द ड्यूटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयज इज प्री डिटरमाइंड. किस व्यक्ति का क्या क्या काम रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी, ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड, पहले से ही तय होना ज़रूरी है. इफेक्टिव कंट्रोल. इन ऑर्डर टू रिमेन द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, नेसेसरी कंट्रोल is exercised. Just evaluate the perform, and if there are any deviation from the established standard, corrective measure are applied. साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होना चाहिए वो पूरी तरह से रिसोर्सेज के माध्यम से इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इंकरेजमेंट टू द वर्कर्स. प्रोत्साहित करता है वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्निक सीखने के लिए, उसका बेनिफिट उठाने के लिए और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए. दीज आर द एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. First, to provide a useful knowledge and skill to increase the production, to change the whole process of organization, to ensure proper guidance and leadership to the worker, to assist in adopting new and scientific technique in production and increase efficiency, to conduct survey and research for the generate more and more profit, to change mental and physical and technical development of the workers, to help increase the level of wages, profit and consumer services, to serve the
to serve the economy and the nation and the society in manner which is society accept. These are the major objective of scientific management. Scientific management is depend on some work study. There is first is time study. टाइम स्टडी इज़ अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक कि काम को करने में कितना समय लगा. टाइम स्टडी रिस्ट्रिक्ट केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज़. जो भी एम्प्लॉयज़ केयरलेसनेस है उनकी केयरलेसनेस को पूरी तरह से यहाँ पर पाबंदी लगा दी जाती है. इंक्रीज इफिशिएंसी. टाइम स्टडी ऑलवेज इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड हेल्प टू डेवलपमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इन शॉर्टली अगर कहा जाए टाइम स्टडी यानी वो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक काम करने में कितना समय लगा, इस प्रोसेस को हम लोग टाइम स्टडी कहते हैं. सेकेंड, मोशन स्टडी. दिस इज द टेक्निक विच इन्वॉल्व क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड a limbs required perform a job. Motion study aims the study of worker and machines as to identify, eliminate unnecessary and wasteful motion. Motion study मतलब काम करने में हम लोग कितनी मूवमेंट करते हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और जिसमें से वेस्टफुल मूवमेंट अगर आपने की है, कोई भी अनवांटेड मूवमेंट अगर आपने काम करते वक्त की है, जैसे कोई रेस्ट लिया, मान लीजिए कोई काम 4 घंटे चला तो 2 घंटे का रेस्ट हो गया, तो उसमें से वो 2 घंटे माइनस हो जाएंगे. इस प्रोसेस को हम कहेंगे मोशन स्टडी. मोशन स्टडी को अगर सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाए, कीप रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट मूवमेंट and the minimum time taken. Next one is fatigue study. Fatigue study means how many time the worker is working, and when a worker is required to work continuously, his speed and efficiency in the work is goes down, diminishing, and he is gets fatigue. कोई वर्कर अगर लगातार कुछ घंटों तक काम करता रहा तो कार्य क्षमता में कमी आएगी और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं थक जाएगा. सो फैटिग स्टडी हमें कहता है नीड अ रेस्ट, उसको कुछ देर की रेस्ट की ज़रूरत है, ताकि व्हेन द पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू रेस्ट, जब वो रेस्ट लेगा और जब वापस काम पे आएगा तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी. इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फैटिग स्टडी. Here the difference between time study and motion study. Time study. Under the time study, what time taken to perform by the workers, that is called time study. Motion study, it is still way of working, काम करने का तरीका, इसको हम motion study कहेंगे. Time study. Time study is done at first, motion study done after the टाइम स्टडी. टाइम स्टडी मेज़र करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है. मोशन स्टडी को मेज़र करने के लिए कैमरे का यूज़ किया जाता है. इन टाइम स्टडी वर्किंग आवर एंड डेज ऑफ लेबर आर मेजर्ड. काम करने के दिन और घंटे काउंट किए जाते हैं टाइम स्टडी में. मोशन स्टडी में उस व्यक्ति की मूवमेंट का स्टडी किया जाता है, उस व्यक्ति के मेथड का स्टडी किया जाता है. टाइम स्टडी इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को बढ़ाती है. मोशन स्टडी मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ लेबर, अनवांटेड जो मूवमेंट है उसको हम लोग ऑब्जर्व करके कम कर सकते हैं. तो ये डिफरेंस है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन फेयोल एंड टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दोनों ने जो प्रिंसिपल लिखे थे उसमें क्या क्या समानताएं थी. फर्स्ट, बोथ वेयर सपोर्टर ऑफ इम्प्रूवमेंट, दोनों इम्प्रूवमेंट का सपोर्ट करते हैं. बोथ वेयर स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों मानसिक विचारधाराओं का सपोर्ट करते हैं. बोथ वेयर कंटेम्प्ररी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बिटवीन 1841 टू 1925, दोनों ने 1841 से लेकर 1925 के लिए मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी. बोथ वेयर
द लेबर वर्कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोनों का मानना था कि प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेबर और वो एक्टिव होने चाहिए। बोथ ट्राई टू प्रेजेंट मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज सोशल साइंस। दोनों का मानना था कि मैनेजमेंट एक साइंस है और उसी के साथ साथ सोशल साइंस भी होता है। बोथ स्टेट, दोनों ने फोकस किया साइंटिफिक वर्किंग के ऊपर और उसकी टेक्निक के ऊपर। बोथ वेयर ऑफ द व्यू दैट वर्कर शुड बी गिवन इंसेंटिव्स टू प्रमोट देयर इफिशिएंसी। अगर वर्कर को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। बोथ हैव लेड मच स्ट्रेट ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग। दोनों ने उद्देश्य और नियोजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। These are the similarity between Fayol and Taylor's principle of management. After similarity, we are discussing what is the difference between Fayol and Taylor approach. Fayol और Taylor की सोच में क्या क्या differences था। First, Fayol developed totally general management process. Taylor developed scientific management process. Fayol principle totally supported of efficiency and Taylor principle are totally supported technique plus efficiency. Fayol design principle from top level of management and Taylor the design principle for lower level of management. इसने टॉप लेवल के लिए अपने सिद्धांत बनाए और टेलर ने लोअर मैनेजमेंट के लिए अपने सिद्धांत बनाए। Fayol improving overall administration by observing certain principle of his main focus. Fayol का मानना था कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का विकास होगा तो हम सबका विकास होगा। Taylor, his increasing productivity through the work simplification was main focus. टेलर का मानना था कि काम को सरल तरीके से प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। Fayol is the father of general management. Taylor is the father of scientific management. Fayol wrote a 14 principle of management and Taylor wrote a scientific technique for the management. Fayol का मानना था he gave a emphasis human element suggestion principle like equity, initiative and remuneration कि एम्प्लॉइज़ को इक्विटी के साथ रखा जाना चाहिए, उनको इनिशिएटिव दिया जाना चाहिए और रेम्यूनरेशन भी दिया जाना चाहिए। टेलर का मानना था ही इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट एम्फेसिस मोर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। टेलर ने साइंटिफिक को अप्रोच दिया और उसने ह्यूमन एलिमेंट को साइड में रखकर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के ऊपर पूरा जोर दिया। फेयोल के प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, जिनमें बड़ी सरलता से चेंजेस हो सकते थे। टेलर फ्लेक्सिबल आर टोटली रिजिड, जिनमें चेंजेस करना काफ़ी मुश्किल था। फेयोल के प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर बिजनेस एक्टिविटी, नॉन बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो। टेलर के जो प्रिंसिपल है इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फेयोल का मानना था ही स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल दैट वन बॉस एंड वन एम्प्लॉइज। टेलर का मानना था डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल, इंस्टीड द मिनिमम 8 बॉसेस टेक्नोलॉजी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर के ऊपर ध्यान देना वो चाहता था। अब इन दोनों डिफरेंसेस को देखने के बाद हमारे माइंड में एक चीज़ आती है मेंटल रेवोल्यूशन की, हमारे माइंड में क्या क्या बदलाव होने ज़रूरी है। What is mental revolution? It is involved the complete change of mental outlook, attitude of worker, of management towards the another form of competition and cooperation. मेंटल रेवोल्यूशन यानी क्या, हमारे दिमाग में होने वाले बदलाव और समय के अनुसार बदलाव होना ज़रूरी है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में टिके रहे। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट अ प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन। मैनेजमेंट ने वर्कर के लिए काम करने की अच्छी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए। शुड वर्क डिवोशन ऑफ लॉयल्टी, ताकि वो अपनी ईमानदारी से काम कर सके। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सब में बांटा जाना ज़रूरी है। दे मस्ट फोकस अटेंशन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ताकि हम लोग प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके। इसको हम लोग मेंटल रेवोल्यूशन कहते हैं। इन शॉर्टली अगर सरल शब्दों में कहा जाए, मेंटल रेवोल्यूशन इज टोटली चेंज ऑफ माइंड ऑफ वर्कर to do working condition, that is called mental revolution. Dear friend, here we will complete
our chapter number 2. In next video we are discussing on chapter number 3. Thank you.